Good morning, 11th standard. Today we are going to study about the physical and chemical properties of arenes. In my previous video, as you must have seen, that we have discussed the different methods of preparation of arenes. So let's start physical properties of arenes. So बच्चे, if we are talking about the physical state, color, smell, then usually benzene और जो उसके homologous होते हैं containing up to 8 carbon atoms. These are colorless liquids, while the higher ones are solids with characteristic smell. And if we, all of us, we must know about the naphthalene balls. So naphthalene balls, because of its characteristic smell, are used in the toilets, as well as it is also used for the preservation of warm clothes. So क्यों होती हैं वो used? Because of their unique smell, and we can say because of their moth repellent property. नेक्स्ट वन आ जाता है दैट इज कम्बशन. तो बेंजीन या अरेन्स में जो होते हैं देयर इज हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन कंटेंट, एंड बिकॉज ऑफ विच दे बर्न यूजुअली विद द सूटी flame. If we are talking about the solubility, then these compounds are हाइड्रोफोबिक इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अरेन्स आर यूजुअली नॉट soluble in water, but these are soluble in organic solvents because like dissolves like. तो उस प्रिंसिपल पर ही ये भी बेस्ड है. अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अरेन्स जो होता है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज. जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, सो द बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो गोज ऑन increasing. Whereas if we are talking about the melting point, so melting point usually depend upon the size, molecular size and symmetry. And the more symmetrical the molecule, better it fits in the crystal lattice, and hence higher its melting point. So अगर हम बात करते हैं isomeric arenes की, so from ortho, meta and para-xylenes, so para isomer will be the highest, having the highest melting point, as it is most symmetrical in nature, and that's why it has highest melting point. Now we are talking about the chemical properties of arenes. So all of you must know that arenes are highly unsaturated hydrocarbons, but these behave like saturated hydrocarbons, and these are usually more reactive than alkanes but are less reactive than alkenes and alkynes because of the extra stability which is associated with arenes due to the delocalization of electrons. ठीक है, तो there are few important reactions which take place in arenes. First one is the substitution or replacement reaction. So beta, substitution reaction is that reaction in which one or more hydrogen of benzene ring are replaced by other monovalent atoms or group of atoms is called substitution reaction. So पहली आ जाती है substitution reaction में halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, acylation. आज हम 3 ही करेंगे, that is halogenation, nitration and sulfonation. ठीक है, इस वीडियो में. So halogenation, in this benzene usually reacts with chlorine and bromine in the presence of Lewis acid, such as aluminium chloride, iron bromide, iron chloride, etc., which are used as a catalyst, and in absence of light these form chlorobenzene or bromobenzene. For example, please just have a look here. When benzene react with chlorine in the presence of a catalyst like anhydrous aluminium chloride or iron bromide at 310 to 320 Kelvin under dark, then it forms chlorobenzene. Similarly, जब bromine का reaction होता है in the presence of anhydrous iron bromide under dark, so it forms bromobenzene with HBr.
ठीक है। ऐसे ही अगर हम टॉलुइन ले लें तो टॉलुइन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस iron chloride and dark and forms major and minor product, that is orthochlorobenzene minor, whereas orthochlorotoluene, बेटा ये टॉलीन बन जाएगा ना, ठीक है। तो orthochlorotoluene as a minor and parachlorotoluene as a major product। अगर excess of electrophilic reagent यूज कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ये यूज कर लिया जाए अगर इस रिएक्शन में, देन 2 or more or even all the hydrogen atoms of benzene ring that may be also replaced by the electrophile। For example, here you can say benzene when treated with excess of chlorine, 6Cl2 हो गए ना, तो excess of chlorine in presence of anhydrous aluminum chloride under in dark, that is hexachlorobenzene with 6HCl molecule। तो बेटा ये क्या बन गया, C6Cl6। सो इट मीन्स कि ये क्या कर सकते हैं, एक या दो, जैसे कि यहाँ पे 2 मिल रहे थे, और मेजर प्रोडक्ट भी आपके और भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। अब लुईस एसिड का फंक्शन बेटा इस रिएक्शन में सिंपल कैरी द हेलोजन टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलोजन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक ले जाना होता है। दैट्स व्हाई दीज लुईस एसिड्स आर नोन एज ऑल्सो halogen carriers in addition to iron or aluminium halides, iron and aluminium halides, iodine and iron fillings also used as halogen carriers। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन फॉर्म्ड होता है जब बेंजीन ट्रीट किया जाता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो इन कंडीशन में पहले आयरन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, फेरिक क्लोराइड, विच देन एक्ट एज अ लुईस कैटलिस्ट। ऐसे ही डायरेक्ट आयोडीनेशन एरोन की नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम ये करेंगे भी डायरेक्ट आयोडीनेशन, जैसे कि यहाँ हम क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज जो HI प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन होगा दैट विल रिड्यूसेस अराइल आयोडाइड बैक टू अरीन एंड आयोडीन। यहाँ देखिए बच्चे, ऐसे क्या हो जाएगा आपका, ये वापस आपकी बेंजीन प्लस आयोडीन, आयोडीनेशन करा आपने, और ये क्या बन गया, आयोडोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये अरीन में वापस हमें दे देगा और आयोडीन वापस आ जाएगा, ठीक है। सो दैट आपका क्या हो जाएगा, अराइल आयोडाइड बनेगा और वो फिर वापस आयोडीन प्लस I2, मतलब ये रिवर्सिबल है, ये देखो। तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, फ्रूटफुल नहीं होती। वेयर एज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, आपका आयोडिक एसिड है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, फर्स्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड। जो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस्ड है दैट इज ईदर ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन और इज एलिमिनेटेड एज मर्क्यूरिक आयोडाइड। पहले या तो वो किसकी तरह होगा, आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या मर्क्यूरिक आयोडाइड की तरह क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फिर रिएक्शन प्रोसीड करती है टू फॉर्म आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन फर्स्ट टेक प्लेस इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस कन्वर्ट इनटू दिस। तो ये अगर करोगे तो इसमें ये रिवर्सिबल हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, आयोडोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड बना, फिर आयोडोबेंजीन वापस बेंजीन प्लस I2 में कन्वर्ट हो गया। तो उसकी बजाय हम आयोडीनेशन अगर कराना है, आयोडोबेंजीन बनाना है, तो हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, HNO3 या HiO3 या GO की प्रेजेंस में। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं HI प्लस HiO3 आपका पहले रिएक्ट कर रहा है तो आयोडीन प्लस वाटर बना रहा है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयोडीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है, और यहाँ पर भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ करने पे मर्क्यूरिक आयोडाइड प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। वेयर एज फ्लोरिनेशन बेटा इस केस में नहीं हो पाता बिकॉज द रिएक्शन इज टू विगरस, सो दैट इज नॉट ऑफ एनी प्रैक्टिकल यूज।
अगला आ जाता है इसका मैकेनिज्म, देखो कि बेसिकली ये कैसे होता है। तो बच्चे अगर मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय वन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 12, जहाँ पर कि हम आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था जनरल आपका जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज हैविंग सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, बट स्टिल यहाँ पर फिर बता दूं कि मैकेनिज्म में एज ऑल ऑफ अस वी नो बेंजीन कंटेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो कि एक ऊपर और एक लाए नीचे करता है प्लेन ऑफ रिंग के, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करने के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन यहाँ पर क्या करता है, दैट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ electrons which is electrophiles and attract electrophiles, ठीक है, and repel nucleophiles. So thus reactions of benzene or other arenes जो होती है that is initiated by electrophiles, and that's why benzene और other arenes जो होते हैं they undergo electrophilic substitution रिएक्शन, जबकि अगर हम अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं तो दैट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो बेटा सब में ये सेम ही होता है, 3 स्टेप्स में होता है। पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, सेकेंड वन फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड वन लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। तो ये जनरल रिएक्शंस मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वन चैप्टर वीडियो, आप उसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पर आकर के मैं अब आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ किसका, क्लोरीनेशन का या हेलोजिनेशन का, ठीक है। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जैसा हमने अभी बात करी कि इट इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर एट 310 to 320 Kelvin in the absence of sunlight and in the presence of a Lewis acid such as anhydrous ferric or aluminium chloride as a catalyst. So first step there is generation of electrophile. अब ये देखो Cl2 था, Cl बॉन्ड प्लस कैटलिस्ट है AlCl3, ये बॉन्ड टूटेगा बिकॉज इट विल AlCl3 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सो दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड दिस बॉन्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड AlCl3, so it will take electrons and takes a carries a negative charge on it, जबकि ये वाला क्लोरीन जो है डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाला जो होगा that will carries a delta negative, ये Cl कहाँ आ गया, इसके पास आ गया, ठीक है। now the another one step there is what is formed, that there is a, अब आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ बच्चे, there is what is to be formed, ये देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, AlCl3, ये भी तो Cl यहाँ आएगा, एक Cl ये आ गया डेल्टा नेगेटिव का, ये Cl पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अट्रैक्ट टुवर्ड द बेंजीन रिंग, और यहाँ हमारी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगी। तो जो पॉजिटिव एंड है आपका इलेक्ट्रोफाइल का, पोलराइज्ड क्लोरीन का, वो क्या करेगा, पाई मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेगा, किसके, बेंजीन के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेटा ये Cl करो, ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। सो स्लो स्टेप होती है बेटा ये, इसमें क्या बना आपका, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये देखिए ये बॉन्ड जो है इसके पास चला गया, तो अट्रैक्ट हुआ, यहाँ बन गया HCl, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से कार्बोकटायन इंटरमीडिएट हो गया, और प्लस AlCl4, ये वाला पोर्शन नेगेटिव चार्ज अलग हो गया। ना दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से। प्लीज हैव अ लुक हियर, यहाँ पे देखिए ये जो है अब आपका यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, ये देखो रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ ये है, this carries a positive charge here, so it this bond shifting ये यहाँ करेगा,
तो यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब यहाँ की पोजीशन खाली हुई तो यहाँ चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में ये बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट करेगा इस वाले पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा ये इसको। तो यहाँ आपका बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ अगर बॉन्ड आया तो ये वाली पोजीशन क्या हो गई, खाली। सो चार्ज जो हो गया पॉजिटिव चार्ज, दैट कम्स टू दिस पोजीशन। तो ये आपके क्या हो गए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। और यहाँ हम कहें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एंड ये क्या बना हमारे, दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सो ये बन गए हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हमारी हाइब्रिड बन गई। दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ, ये क्या है हमारी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेप में, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ना बेस जो AlCl4 है, ये क्या है अब नेगेटिव, ये क्या है बेस है ना। दिस बेस जो कि रिएक्शन में अभी प्रेजेंट है, रिएक्शन मिक्सचर में है, यहीं पर था ना, ये अभी बचा हुआ था। सो रिएक्शन मिक्सचर में हमारा प्रेजेंट है ये। सो दैट एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन, तो ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर देखिए H है इसके पास, तो ये बॉन्ड जो है वो इधर वापस आ जाएगा, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इट अट्रैक्ट विद दिस प्रोटॉन, टेक्स दिस हाइड्रोजन प्रोटॉन फ्रॉम हेयर, चार्ज ले लेगा और क्या कर लेगा, AlCl3, एक Cl जो है वो हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होके क्या बनाएगा, HCl, and chlorobenzene is to be formed. This step beta is very fast, ये बहुत जल्दी होती है, and it do not affect the rate of reaction. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाइट्रेशन। Now, nitration is the process in which hydrogen atom of arene is replaced by nitro group in the presence of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. ठीक है, so it is always, remember this thing, it is always carried in the presence of a mixture of concentrated nitric acid with concentrated sulfuric acid. ठीक है, तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं इसको। और जब ये 323 to 333 केल्विन पे कैरिड ओवर होता है तो ये बनाता है नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर इज टू बी फॉर्म। अब मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें H2SO4 लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द मैकेनिज्म, स्टेप्स वही रहेंगी सेम सिमिलरली। सो पहली स्टेप में वही आता है, दैट इट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। क्या बनाएगा यहाँ पे, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, ये याद रखना। तो अब ये नाइट्रोनियम आयन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 जो है, दैट एक्ट एज द बेस, याद रखना। HNO3 act as the base in the presence of sulfuric acid and it accepts a proton. यहाँ देखो पहले H2SO4, ऑब्वियसली ये ज़्यादा, ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन रिलीज करता है प्लस HSO4 नेगेटिव बनाता है। ये आपका जो क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड जो कि आप बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, वो क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, अपने में से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और नाइट्रोनियम आयन बनाएगा। कैसे, देखो बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 लोन पेयर है। लोन पेयर जो है H2SO4 के H पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट आयन। ठीक है, दिस वन इज इंटरमीडिएट आयन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर अब ये देखो, ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया and it carries 1 lone pair. Now again, ये जो है, this bond will attract with this positive charge, ये इसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, प्लस NO2 जो है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये बना देगा नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो दिस वन इज टू बी फॉर्म्ड हेयर। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है मेरा। ठीक,
ना दिस इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अरीन, ये क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोनियम आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा NO2 पॉजिटिव, और जिसकी वजह से हमारी स्टेप 2 या फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगी। तो ये स्टेप हमारी अगेन स्लो होगी, और यहाँ पे हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स या हम जैसे कार्बोकटायन बनते हैं, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यहाँ देखो ये इधर गया तो चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे आ गया, बॉन्ड जो है वो नाइट्रोनियम के पास पहुंच गया था, तो NO2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है। अब इसका देखो रेजोनेंस में फिर सेम वही, दिस पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टूवर्ड हेयर, तो यहाँ स्पीसीज खाली हुई, चार्ज यहाँ आएगा, चार्ज ये आ गया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। नाउ अगेन जब चार्ज यहाँ आया तो दिस बॉन्ड ऑल्सो टुवर्ड्स शिफ्टिंग टुवर्ड दिस साइड, तो वो इधर शिफ्ट करेगा, तो बॉन्ड इधर आ जाएगा। बॉन्ड अगर इधर आ जाता है तो चार्ज जो होगा, यहाँ पोजीशन खाली हो गई तो चार्ज विल कैरी दिस पोजीशन, तो चार्ज यहाँ आ गया। तो दिस इज अ रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये बन गया, एंड चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन दिस पोजीशन। तो ये वो चार्ज आपका मूव कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप फिर वही रहेगी बेटा, ये स्लो स्टेप है, इसलिए ये स्टेप क्या होगी हमारी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 जिसे कि हम लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकटायन कहते हैं, इसमें सेम। अब स्टेप 3 में क्या हुआ कि हमारा ये इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, और इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे HSO4 बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, अभी रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रेजेंट था, सो दैट विल कम्स अप हेयर, इट इज अ फास्ट रिएक्शन, और ये क्या करेगा, आपके कार्बोकटायन से HSO4 नेगेटिव एक्सेप्ट H अपना प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा एंड कन्वर्टेड इनटू H2SO4, और ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है, क्लियर हुआ। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन। अगला आ जाते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन में। Now, sulfonation is usually carried out, a reaction is carried out by treating arene or benzene with the concentrated sulfuric acid, or we can say oleum. बेसिकली ये फ्यूमिंग H2SO4 में कराया जाता है। फ्यूमिंग H2SO4 इज बेसिकली ओलियम विच इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो कि क्या देते हैं, H2S2O7, ये ओलियम होता है, ठीक है। इसके अंदर भी वही सेम स्टेप्स होंगी, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए दैट दिस सल्फर ट्राईऑक्साइड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्या करना है, H2SO4 से क्या करनी है, ये है ना पहली स्टेप, तो H2SO4 से हमें सबसे पहले SO3 मॉलिक्यूल लेके आना है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और वो कैसे होगा, एसिड बेस इक्विलिब्रियम से होगा। जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं देन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एंड द सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो ये बनते हैं। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसे, देखो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में ये डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एंड दिस विल कैरी अ पॉजिटिव एंड दिस विल कैरी अ नेगेटिव। यही हुआ है यहाँ पे ना, इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। अगला एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है दैट चार्ज गोज अगेन टू दिस बॉन्ड, तो वो यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, एंड ये शिफ्ट होएगा ये वाला। इफ दिस विल शिफ्ट अप सो इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, तो अगर इस पे नेगेटिव आता है तो ये बॉन्ड अपने को क्या करेगा, टूवर्ड इट अट्रैक्ट टूवर्ड ऑक्सीजन एंड इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल कैरी अ डबल बॉन्ड। सो इससे हम कह सकते हैं कि SO3 जो है दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल हेयर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो कि बेंजीन है दैट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड SO3, तो इसके यहाँ इससे अट्रैक्ट होगी। सो अगेन ये क्या बना बेटा आपका
सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया या कार्बोकटायन बन गया। यहाँ पे देखिए सेम वही जो हर स्टेप में हो रहा है हमारा कि अब HSO3 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड जो है विल शिफ्ट और अट्रैक्ट टुवर्ड दिस चार्ज, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब इसके रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देखिए, ये बॉन्ड शिफ्टिंग हुई तो बॉन्ड यहाँ आया, चार्ज इधर आ गया क्योंकि पोजीशन खाली हो गई, तो यहाँ इसमें से फिर ये वाला बॉन्ड जैसे ही चार्ज यहाँ आया तो दिस बॉन्ड विल अट्रैक्ट टुवर्ड दिस कार्बन, इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा एंड चार्ज विल कैरी हेयर, तो चार्ज यहाँ आ गया। ये आपके कैनोनिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर्म है कार्बोकटायन की, एंड हेयर this is the resonance hybrid it is formed. Next step is again the same one, loss of proton from कार्बोकटायन। तो अब प्रोटॉन लॉस होगा कैसे, मिक्सचर में अभी हमारा HSO4 बचा हुआ है और H3O पॉजिटिव बचा हुआ है, HSO4 नेगेटिव H3O पॉजिटिव, तो HSO4 नेगेटिव लिया, फास्ट रिएक्शन हुई, अट्रैक्ट या एक्सेप्ट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ बच गया आपका SO3 नेगेटिव प्लस H2SO4, फाइन, ये मिल गया। अब बेटा यहाँ पे ये नेगेटिव में है, ठीक है, तो उसके लिए हाइड्रोनियम बचा हुआ था तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन होगा यहाँ पे, तो हाइड्रोनियम विल कम इन द रिएक्शन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, और यहाँ पर H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव स्पीसीज है, तो इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोनियम आयन, तो ये बना आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड वाटर इज रिलीज्ड। सो इन दिस वन वे वी कैन से, बट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है, ये जो बना है बेटा, इसमें अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम पे है, ये रिएक्शन फास्टर थी, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, बट इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है, इधर की तरफ ज़्यादा है और राइट की तरफ कम है। इसका मतलब क्या है कि ये इजीली इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, और क्यों, क्योंकि सल्फोनिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो अपने में से प्रोटॉन को बहुत जल्दी रिलीज भी कर सकता है। सो यहाँ पर सल्फोनेशन जो है, बाकी रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं थी लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ध्यान रखना इस चीज का, दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो ये जो सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इजीली अपने को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड और बेंजीन के अंदर। सो अगर मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को स्टीम में क्या करूं, स्टीम के साथ अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड अगर रिएक्ट कराती हूँ तो इट विल इजीली कन्वर्टेड इनटू बेंजीन and sulfuric acid, and this reaction is known as desulfonation. क्या कहते हैं इसे, desulfonation reaction. So please just take care it in mind. ये reaction sulfonation की थोड़ा सा क्या है, different है बाकी और reactions से, ठीक है। So today we are going to, in this video we are going to discuss only about this. नेक्स्ट वीडियो आपकी मैं लेकर के आऊँगी और उसमें हम आगे की रेस्ट ओवर केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। इसको रिवाइज कीजिएगा फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एज वेल एज फ्रॉम माय वीडियो अगेन। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू।